Good evening to everybody. In the last lecture, we are going to discuss on IPR and the different aspect of IPR. So, what are the theories which are related to the IPR? We have been discussed in the last lectures, like utilitarian theory, natural theory, and all kinds of the theory we have been discussed, and through this theory we try to understand how the two aspects are most important related to the intellectual property right. First one is nature and second one is a society, social aspect and nature aspect. From the natures, human being have gifted some skill, some property, and it is need to protect it by the nature, by the birth, and by the society. Human being gifted some property, it is also need to protect it. So both kinds of the property, whether it is getting from the society or whether it is getting from the nature, it is need to be protected. And who play important role in protection of intellectual property right or physical property right? The government. What is the role of government to protect intellectual property as well as physical property of human being? Because different types of laws are made by the government, and that is why if someone will try to broken the other's right of human being which is offered by the nature as well as the society, then with the help of this law we can claim in the court and we can demand judge over the problem. So in this way government play important role there. Okay, and how play important role, we should know about that. There is a government in any country, government play important role. Okay, that is called Government of India, GOI. Intellectual property of human being okay, and second one is physical property of human being. Okay, so both kind of property which are offered by sequentially society as well as nature, so it is to be protected by the government. And how the government protected both kind of the property? By
laws. By prepare the act or laws, the government try to protect the property, and if even the protection is given by the government to each and every human being, the property of each and every human being, but even someone try to break this law, then under these laws we can demand the judge from the court, and if it is proved there, then what will happen? The punishment is given to others person, those who are try to break the law. तो इस तरह से गवर्नमेंट का रोल इसमें इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, ग्रुप्स रहते हैं, और एक ऐसा स्थान चाहिए. इफ द quarrel टेक प्लेस बिटवीन द टू पर्सन, conflict took place the person, two person or two groups, then it should be solved by the third party, third institutions, that is called the government, and government play important role to solve all kinds of the conflict there. तो इस तरह से दो व्यक्ति या समूह में कोई झगड़ा होता है, संघर्ष होता है किसी टॉपिक को लेकर, तो उसे हल करने के लिए एक थर्ड विदाउट बायसनेस ऐसी एक संस्था चाहिए होती है जो दोनों का हल सॉल्व कर सके, समस्या सॉल्व कर सके. और इसमें जुडिशरी जो बोर्ड होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि कोर्ट होता है, कोर्ट में हम किसी मुद्दे को लेकर जाते हैं, यदि हम पर अनजस्टिस हुआ है तो वहाँ पे हम क्लेम करते हैं और फिर जज की डिमांड करते हैं. ओके, एंड इफ इट इज़ प्रूव दैट कि हमारे ऊपर अनजस्टिस हुआ है तो कोर्ट या जज हमें जज देता है और उसका हमें फिर सेटिस्फैक्शन मिलता है. ओके, फिर आगे जाकर ऐसी कोई हरकत नहीं करता, क्योंकि आपने क्लास में देखा होगा बहुत सारे बच्चे मस्ती कर रहे होते तो टीचर क्या करते हैं, एक बच्चे को पनिशमेंट करते हैं और बाकी अपने आप शांत हो जाते हैं. तो ये एक उदाहरण है. इससे हम ये समझ सकते हैं कि एक को यदि शिक्षा मिली तो अपने आप सभी लोग रूल फॉलो करने लगते हैं. ऐसा नियम है, फिर चाहे वो क्लास का हो या समाज में अलग अलग क्लास हो, ग्रुप हो, उसका हो, ये सभी को लागू होता है. तो इसलिए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट द्वारा जो रूल्स बनाए जाते हैं उसका बड़ा इम्पोर्टेंट है. एक गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, एक्ट बनाए गए हैं, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू मेक स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी. तो समाज में एक स्थिरता लाने के लिए, एक संतुलन बनाने के लिए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट द्वारा जो रूल्स और लॉज रेगुलेशन बनाए गए हैं वह महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाते हैं. ओके, सो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी आईपीआर लॉ गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है. हर एक कंट्री में गवर्नमेंट होती है सेंट्रल लेवल की, और उसके द्वारा आईपीआर ये एक्ट वहाँ पर बनाया गया है. ओके, तो आईपीआर किस संबंध का लॉ है? जैसे कि हमने देखा देयर आर टू काइंड्स ऑफ द प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. जिस तरह से हम फिजिकल प्रॉपर्टी का संरक्षण करने के लिए लॉज होता है हर एक देश में, उस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का संरक्षण करने के लिए भी लॉ बनाया जाता है. तो ये नेशनल लेवल की बात है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी एक लॉज होता है, क्योंकि
दो राज्यों में जो कन्फ्लिक्ट हो सकता है उसका हल हम नेशनल लेवल का जो लॉ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसके जरिए सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दो देशों में यदि कन्फ्लिक्ट होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर तो उसे हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो दो देशों में कोऑर्डिनेशन कर सके। दो देशों के बीच यदि कन्फ्लिक्ट होता है तो उनको जज दे सके राइट। तो इस तरह से जिस लेवल पे कन्फ्लिक्ट होता है उस लेवल पे उस गवर्नमेंट काम करती है, उस लेवल का एक्ट काम करता है। जैसे स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल का एक्ट जो होगा स्टेट ने बनाया वो काम करेगा, और नेशनल लेवल पे नेशन ने जो बनाया लॉ होता है वो काम करता है, और इंटरनेशनल लेवल पे जो लॉज बनाया होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग वो वहाँ पे काम करता है। तो इस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग, it is need to be protected by law. It is need to protect. ओके तो दोनों का प्रोटेक्शन करना एक राज्य की जवाबदारी होती है, स्टेट की या देश की जवाबदारी होती है। ओके तो इस तरह से आप ये फ्लो चार्ट निकाल सकते हैं। यू कैन ड्रॉ दिस काइंड ऑफ द फ्लो चार्ट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस will understand who play important role to protect the property, whether it is intellectual property or whether it is physical property. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क है ये हमने ऑलरेडी आपको बताया है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग, different kinds of skill acquired by the human being, and with the help of this skill when human being try to generate create something new, and that is called the property intellectual property of human being. So no one distract, forcefully demand, misuse the property intellectual property of human being. So those who are creator of intellectual property, he is fully authority or right to use in proper way, and that is why such kinds of the rights has given to the human being by the natures, by the birth. Okay तो निसर्गतः बाय बर्थ इंसान को ये राइट्स मिला है कि जो भी उसके द्वारा क्रिएट होगा कुछ भी तो उस पर पहला अधिकार उसका होता है, और उसे वह प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं होती, और किसी कोर्ट कचहरी या न्यायालय में जाने की ज़रूरत नहीं होती कि यह मेरी प्रॉपर्टी है ऐसा करके। यदि किसी ने उसका हनन करने का प्रयास किया या उस प्रॉपर्टी को चुराने की कोशिश की, मिसयूज करने का प्रयास किया, तो इसके लिए वह कोर्ट में जा सकता है। तो इस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन जानकारी प्राप्त की, और हमने ये भी देखा कि जिस तरह से नेशनल लेवल पे हर एक देश ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लॉज बनाए हैं, ठीक उसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे भी लॉज है। तो दो में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। यदि इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट हमारे देश के लॉज है और उसमें अडॉप्शन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो आपको दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो इंटरनेशनल लॉ सब देशों के एडॉप्शन अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ये लॉ बनाने से पहले
सभी देशों से अपना अभिप्राय मंगवाया जाता है, फिर उसके बेस पर यह लॉ तैयार किया जाता है। ओके, तो इस तरह से गवर्नमेंट उसके द्वारा बनाए गए जो लॉ है वह और ह्यूमन बीइंग और उसकी प्रॉपर्टी, इसका जो सीक्वेंस है वह कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये प्रूव हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट। तो पहला आता है गवर्नमेंट, ओके, दूसरा लॉ या एक्ट उसके द्वारा बनाया गया, तीसरा ह्यूमन बीइंग, चौथा सोसाइटी और पांचवा उसकी प्रॉपर्टी। ओके, तो ये सीक्वेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पहला तो ह्यूमन बीइंग है, वह सोसाइटी में रहता है, फिर उसके पास दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, इंटेलेक्चुअल या फिजिकल प्रॉपर्टी। तो दोनों का संरक्षण करना यह ना बल्कि ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि गवर्नमेंट की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यदि कोई भी गवर्नमेंट ह्यूमन बीइंग की प्रॉपर्टी का संरक्षण नहीं कर सकती, तो फिर क्या होता है, ह्यूमन बीइंग प्रॉपर्टी का संरक्षण नहीं कर सकती तो फिर क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, दो लोगों में झगड़ा होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, फिर समाज में अराजकता फैलती है, कल उठकर कोई भी किसी की प्रॉपर्टी चुरा सकता है, हनन कर सकता है, तो दिन दहाड़े चोरी होने लगती है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसमें इंसान का तो लॉस होता ही है, लेकिन समाज का भी लॉस होता है, क्योंकि अराजकता पैदा हो जाती है, लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, हर एक को अपनी प्रॉपर्टी हम किस तरह से संरक्षण कर सकते हैं इसका टेंशन रहता है, फिर उसका संरक्षण के लिए वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इंसान यदि समाज में रहकर काम करता है, अपना टैलेंट दिखाकर कुछ करने का प्रयास जनरेट करने का प्रयास करता है, तो सब वह खुद की डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर्टी कमाने के लिए करता है। और यदि उसके द्वारा जो प्रॉपर्टी अर्न की गई है, कमाई गई है, और उस पर ही यदि कोई हमला करता है, कोई उसे चुराने का प्रयास करता है, तो कोई भी इंसान शांत बैठने वाला नहीं है, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट तैयार होता है। ओके, तो इस तरह से अराजकता, एनर्जी क्रिएट हो सकती है सोसाइटी में, और यह संतुलन रखने के लिए लॉ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सोसाइटी में अलग अलग प्रकार की जो लोग होते हैं, उनके अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती है, और अलग अलग प्रकार की समस्या सॉल्व करने के लिए अलग अलग प्रकार के लॉज बनाए गए हैं, और जिसको भी जिस मोस्ट इम्पोर्टेंट देयर 5 elements I have told that गवर्नमेंट, लॉज, ह्यूमन एंड सोसाइटी एंड प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का विवरण जो होता है वह समान लेवल से होना चाहिए, समान तरीके से होना चाहिए। यदि मुट्ठी भर लोग रिच होते हैं, श्रीमंत होते हैं, तो वे क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं समूह का, बहुत सारे लोगों का, और फिर वो सारे लोग क्या करते हैं, एक दिन रास्ते पे आते हैं, रोड पे आते हैं, और फिर वहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट तैयार होता है दोनों में, गवर्नमेंट और कैपिटलिस्ट जो है उनमें। और ऐसी घटनाएं जो है उसको अराजकता कहते हैं, जहाँ पर सोशली बैलेंस नहीं होता है, इकोनॉमिकली बैलेंस नहीं होता है जिस देश में, और प्रॉपर्टी का, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो, समान तरीके से विवरण नहीं होता है, तो जिनको प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, जिनकी प्रॉपर्टी का संरक्षण नहीं होता है, वे लोग क्या करते हैं, फिर
अनसेटिस्फाई होते हैं और फिर एक दिन वह रास्ते पे उतरकर गवर्नमेंट से कन्फ्लिक्ट करने लगते हैं। ओके, सो in this way we can say that how all things are most important and how the coordination took place between the 5 elements। इन 5 घटकों में किस तरह से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ये भी हमने यहाँ पर देखा। तो हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की, जैसे कि लॉ कितना इंपॉर्टेंट होता है टू कीप द बैलेंस इन द सोसाइटी, टू मेंटेन द पीस इन द सोसाइटी, टू कोऑर्डिनेट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये हमने यहाँ पर देखा। और ये लॉ किसके जरिए बनाया जाता है, तो ये लॉ समाज के द्वारा, जो समाज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वे दे आर सिटिंग इन असेंबली हॉल, whether it is Lok Sabha or Rajya Sabha, if we take example of our India, and due to the problem of society, due to the need of society, they prepare the law or right there, okay, to protect the human beings। तो इस तरह से हम नेशनल लेवल पे जो लॉ होते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जो लॉ होते हैं उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। तो नेशनल लेवल पे आईपीआर हमारे देश में है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और ठीक उसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे भी आईपीआर की रचना की गई है। आप यहाँ पर सवाल कर सकते हैं कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग लॉ क्यों होते हैं, क्योंकि अलग अलग लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट होती है। जैसे कि स्टेट लेवल हमारे देश का भी जब हम विचार करते हैं तो हमारे देश में मोर देन 35 स्टेट है, तो अलग अलग गवर्नमेंट वहाँ पर है और फिर अलग अलग गवर्नमेंट अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन करती है। तो उसमें भी एक यूनिफॉर्मिलिटी लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक देश होकर भी। तो फिर अनेक देश की जहाँ पर अलग अलग गवर्नमेंट होती है, अलग अलग सत्ता होती है और फिर एक देश का लॉ एक देश में ही चलता है, दूसरे देश पे वह पैसिव हो जाता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक देश में वहाँ की जनता के हिसाब से वो लॉ बनाया होता है और उसके हिसाब से वो काम करता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लॉ इम्पोर्टेंट होता है अलग अलग लेवल पे, क्योंकि अलग अलग लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट होती है और उसके हिसाब से वो लॉ बनाती है। तो इंटरनेशनल लेवल पे दो प्रकार के लॉज हमने यहाँ पर देखे, उसमें वीपो जो लॉ है कन्विक्शन के हिसाब से वीपो बनाया गया है और वीटीओ के हिसाब से ट्रिप्स एक्ट बनाया गया है। ओके, ये दोनों पे हमने चर्चा की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस इसे हम कहते हैं। तो वीपो कन्वेक्शन के द्वारा यह लॉ की निर्मित हुई और
जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं, उसकी निर्मित हुई। और जैसे हम बोलते हैं वीटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, तो उसके द्वारा ट्रिप्स की निर्मित हुई। ओके, तो ये दोनों लॉज इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं और उसमें वीटीओ ट्रिप्स, वीटीओ का इम्पोर्टेंट होना जरूरी होता है। और ये अलग अलग टॉपिक पे काम करता है, जैसे कि ट्रेड रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वीटीओ के द्वारा हैंडल की जाती है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट वगैरह जो सभी प्रकार के जो आईपीआर है इसमें आते हैं विपो के अंडर। और जो मेंबर देश है उनके लिए यह रूल्स एंड रेगुलेशन कंपलसरी होते हैं और वे फॉलो करते हैं। ओके, और विपो की कैसी ये हुई मीटिंग, ये हमने देखा। और उसके हिसाब से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के संबंध में इंटरनेशनल लेवल पे ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये किस तरह से काम करती है इसका स्टडी हमने किया है। और इश्यू कवर्ड बाय द ट्रिप्स, कौन कौन से इश्यू ट्रिप्स में आते हैं ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, रिमेनिंग पार्ट। हाउ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ट्रेडिंग system and other international intellectual property agreement should be applied. Then there are so many trading principles are there, and basic trading principles are also most important there, and how we can apply this agreement on this basic principle of trading, it is most important. The second one, how to give adequate protection to intellectual property right. If the law is made there, but even though some drawbacks should be there, lack of knowledge regarding the IPR in the society, there are so many people, those who are living society, they don't know there is a law to protect our intellectual property law, and if someone try to break their law by demanding or misuse the intellectual property law, तो वे कंप्लेंट नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, ये भी एक ड्रॉबैक कहा जाता है। तो हर एक चीज़ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है उनको संरक्षण मिलना, यह इस राइट की डिमांड है। हाउ टू गिव द एडिक्वेट प्रोटेक्शन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हाउ कंट्रीज शुड एनफोर्स दोज राइट एडिक्वेटली इन देयर ओन टेरिटरीज। तो हर एक कंट्री में अपना एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, और उनका उद्देश्य क्या होता है, किस तरह से हम हमारे देश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यही एक मेन उद्देश्य उनका उसके पीछे होता है। हाउ कंट्रीज शुड enforce those rights adequately in their own territories, how to settle dispute or intellectual property between members। तो ट्रिप्स का एक उद्देश्य होता है, और दो देशों में यदि कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है रिगार्डिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो उसे किस तरह से टैकल किया जाए,
उसे किस तरह से सॉल्व किया जाए, ये भी मुद्दा इसमें इंक्लूड होता है। स्पेशल ट्रांजिशनल अरेंजमेंट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द न्यू सिस्टम इज बीइंग इंट्रोड्यूस। तो इसमें हमेशा अपग्रेडेशन होते रहता है, किस तरह से पुरानी सिस्टम को डेवलप मॉडिफिकेशन किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, फिर इस तरह से वे नई सिस्टम तैयार करने का प्रयास करते हैं ताकि लोगों को अच्छी तरह से सर्विस दे सके। तो ये सभी चीज़ें इसमें कवर की जाती है जो ह्यूमन बीइंग का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ओके, so overall we can bring out the conclusion of this text. The purpose of this agreement was not only to provide minimum standard for the protection of IPR but also to provide for its purpose. तो इस एग्रीमेंट का इतना ही पर्पज़ नहीं कि ओनली मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द प्रोटेक्शन दिया जाए, लेकिन इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं इसमें प्रावधान दी गई है। दिस एग्रीमेंट प्रोवाइड अ मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ IPR that allows right holders to protect their legitimate interest through civil court or administrative proceedings. तो legitimate interest के द्वारा, सिविल कोर्ट के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग के द्वारा किस तरह से मिनिमम स्टैंडर्ड हम एनफोर्समेंट कर सकते हैं IPR के रिगार्डिंग, यहाँ पर दिया है। IPR covered by these agreements including immediate measures to prevent violation and remedies are included. तो IPR कई तरह के एग्रीमेंट कवर करता है इंक्लूडिंग इमीडिएट मेजर्स टू प्रिवेंट वायोलेशन एंड रेमेडीज आर इंक्लूडेड। अलग अलग प्रकार की इसमें रेमेडीज है और मेजरमेंट है, वह यहाँ पर कवर की जाती है और इसके जरिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जरिए, राइट के जरिए हम लोगों को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि लोगों में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो सके कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है, और यदि ऐसा होता है तो इस एक्ट के अंतर्गत, इस राइट के अंतर्गत हम क्लेम कर सकते हैं, और यदि हमारे पास उसकी एविडेंस है तो हमें कोर्ट में जज भी मिल सकता है। तो इस तरीके से लॉ कितना इम्पोर्टेंट होता है टू प्रोटेक्ट आवर प्रॉपर्टी, वेदर इट इज़ फिजिकल और वेदर इट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये हमने यहाँ पर सीखा। और इसके संबंध में जो भी टॉपिक्स यहाँ पर आए वह हमने यहाँ पर लर्न किए। सो इन दिस वे दिस टॉपिक हैज़ बीन फिनिश्ड हियर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये टॉपिक यहाँ पर अब खत्म हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू मूव आवर नेक्स्ट टॉपिक बिलोंग टू द फर्स्ट यूनिट, 7th topic. What is the title of this topic? Plagiarism concept and types. Okay. So we discussed earlier topic intellectual property, and now we are going to discuss plagiarism. Actually both are interrelated topic, interdependent topics, and how they are interrelated we can discuss here also. So intellectual property right tell us that
how we can protect our intellectual property with the help of right IPR. The second one is plagiarism. Both concept, how they are interrelated. This law tell us how we can protect intellectual property with the help of IPR. तो इस तरीके से लॉ हमें यहाँ पर बताता है कि किस तरह से हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है या ह्यूमन बीइंग किस तरह से अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का संरक्षण कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो उसे गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है एनी कंट्री में, और इंटरनेशनल पे भी ये प्रोवाइड किया जाता है। और दूसरी जो कंसेप्ट है प्लेगरिज्म, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कब धोखे में आती है, यानी कि कब चोरी होती है और क्यों चोरी होती, कैसे चोरी होती है, और यदि वो चोरी होती है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत हम किस तरह से उसका संरक्षण कर सकते हैं और किस तरह से क्लेम कर सकते हैं और किस तरह से क्लेम करके जज भी प्राप्त कर सकते हैं, यह इस लॉ के जरिए सिखाया जाता है। लेकिन प्लेगरिज्म एक्टिविटी किस तरह से अनफेयर है, यह प्लेगरिज्म में सिखाया जाता है। और इस अनफेयर एक्टिविटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ओके, तो यह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मदद से हम प्रिवेंट करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है बीमारी होना एक अलग बात है और बीमारी न होना ये दूसरी बात है, ओके। तो प्रिवेंशन इज अ बेटर वे टू ओवरकम ऑन द डिसीज। कोई भी बीमारी से मुक्तता करना या मुक्त होना प्रिवेंशन से बड़ा कोई मार्ग नहीं होता, प्रतिबंध करना कोई बड़ा मार्ग नहीं होता, ओके। यदि किसी को कैंसर होता है ड्यू टू द स्मोकिंग, ड्यू टू द ईटिंग टोबैको, तो होने के बाद हम प्रयास करते हैं उसे अच्छा करने का, लेकिन वो ना हो इसके लिए हम क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जो गुटखा है, जो टोबैको है, जो स्मोकिंग के संबंध में जो भी चीज़ें हैं उन पर बैन लाना चाहिए, ओके। सो दिस इज द प्रिवेंशन एक्टिविटीज एंड इट इज़ बेटर दैन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये कभी भी अच्छा होता है प्रिवेंशन। तो इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यदि कोई चोरी करता है और फिर उस पर हम केस लड़कर और क्लेम कर उसको जज प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो उससे बेटर क्या होता है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म के बारे में जब हम अवेयरनेस बढ़ाते हैं कि किस तरह से प्लेगरिज्म ए डेंजरस थिंग होता है ह्यूमन के लिए और सोसाइटी के लिए, जैसे कि अराजकता इसके क्रिएट हो सकती है, इसका कनेक्शन हम इसने अनार्ची से जोड़ा है, अराजकता से जोड़ा है। तो ये ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पहली चीज़ है अवेयरनेस। प्लेगरिज्म के बारे में हम अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, ओके।
तो प्लेगरिज्म क्यों होता है और कैसे होता है? बहुत सारा प्लेगरिज्म 50% हम कॉन्फिडेंटली यहाँ पर कह सकते हैं कि 50% जो प्लेगरिज्म होता है वह विदाउट अवेयरनेस होता है। लोगों को पता नहीं होता कि हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वह प्लेगरिज्म है, क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं होती, इसके लिए वह गुनाह कर देते हैं। जैसे कि नेट पे जब हम जाते हैं तो कोई वीडियो होगा तो हम कॉपी कर लेते हैं, कोई टेक्स्ट होगा तो कॉपी कर लेते हैं और अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसका यूज़ कर लेते हैं या कमर्शियल के लिए यूज़ कर लेते हैं। गूगल इमेज है, गूगल वीडियोज़ है, उसका भी हम पर्सनल या कमर्शियल यूज करते हैं। लेकिन हमें तब यह पता नहीं होता कि वह कॉपीराइट एक्टिविटी है या कॉपीराइट लाइसेंस हमें उसका लेना चाहिए, परमिशन उसकी लेनी चाहिए। इन सभी बातों में हमें पता नहीं होता और हम उसका अपने पर्सनल या कमर्शियल के लिए यूज कर लेते हैं। ओके, और जब तक कोई इसके संबंध में क्लेम नहीं करता तब तक हमें यह पता नहीं होता और हमने चोरी की है या कॉपी की है या प्लेगरिज्म किया है, तो हम वो करते रहते हैं। और जब तक कोई क्लेम नहीं करता तब तक यह जो क्राइम है हमारे द्वारा हुआ जाने अनजाने में, जिसे हम बोल सकते हैं विदाउट अवेयरनेस, तो तब तक ये चलते रहता है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता और हमें भी ये पता नहीं चलता कि हमने ये किया है। लेकिन किसी ने क्लेम किया तब हमें पता चलता है कि हाँ, कि ये जो क्रिएटिविटी थी ये दूसरे की थी और हमें उसकी परमिशन लेना चाहिए था और हमने वह किया नहीं, तो इसके रिगार्डिंग हमको वह क्लेम आया है। ओके, तो इस तरीके से जब भी आप इंटरनेट का यूज करते हो, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और मल्टीमीडिया का यूज करते हो, चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो या पिक्चर हो, तो वह लेते समय अवेयर रहे। यू शुड बी चेक दैट वेदर इट इज पेड और अनपेड, वेदर इट इज कॉपीराइट और विदाउट कॉपीराइट, यू शुड बी चेक द फैक्ट। तो हमें क्या करना चाहिए? ऑनलाइन डॉक्यूमेंट या मल्टीमीडिया यूज करते समय, ऑडियो, वीडियो और पिक्चर्स जो भी हम यूज करते हैं सोशल मीडिया से या इंटरनेट से, तब हमें यह पता कर लेना चाहिए कि वह कॉपीराइट है या नहीं। यदि कॉपीराइट फ्री है तो हम उसका यूज कर सकते हैं पर्सनल या कमर्शियल के लिए, लेकिन कॉपीराइट है, उस पर कॉपीराइट है, तो हम पर्सनल के लिए भी नहीं और कमर्शियल के भी लिए नहीं, दोनों भी यूज नहीं कर सकते। और यदि पर्सनल ऐसी कॉपीराइट एक्टिविटीज़ है, मल्टीमीडिया है, तो आप परमिशन लेकर या पेड कर यह यूज कर सकते हो। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पर समझना जरूरी है। तो प्लेगरिज्म के संबंध में पहले अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है, और कभी कभार ऐसे होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं वेदर इट इज़ कॉपीराइट और नॉट कॉपीराइट। जो कंटेंट हम यूज करने वाले हैं कॉपीराइट या कॉपीराइट फ्री है, तो इसलिए एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर होते हैं, वो चेकर होते हैं। दे चेक द प्लेगरिज्म कंटेंट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन चेक वेदर इट इज प्लेगराइज और नॉट। तो कंटेंट के बारे में हम यहाँ पर चेक करते एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर के द्वारा कि वह प्लेगराइज है या नहीं। ओके, जब हम कोई रिसर्च करते हैं अपने फील्ड में, तो अंत में जब हम वाइवा प्रेजेंट करते हैं, हमारा अंतिम प्रेजेंटेशन जिसे हम बोलते हैं टू अचीव द डिग्री, पीएचडी डिग्री, तब हमारा जो संपूर्ण थीसिस होता है इट शुड बी चेक विद द हेल्प ऑफ एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर। ओके, and if there is find that you have stolen the literature from others literature without giving the citation, then your degree may be cancelled there.
तो आपकी डिग्री वहाँ पर कैंसिल भी हो सकती है। तो एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर कौन से है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और उसका यूज़ आपने करना चाहिए। और तीसरी बात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अलग अलग जो प्लेगरिज्म के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वह हमें फॉलो करने चाहिए। जो अपेक्स बॉडी होती है एजुकेशन में उसके द्वारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए जाते हैं, जैसे कि हमारे देश में यूजीसी यूनाइटेड ग्रैंड कमीशन, और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सभी यूनिवर्सिटी प्राइवेट या नॉन प्राइवेट और सेमी प्राइवेट सभी पर लागू होती है। ओके, तो प्लेगरिज्म हमारे द्वारा ना हो, ये एक्टिविटीज़ में हम ना फंसे, तो इसके लिए हमें सदा अवेयर रहना पड़ेगा। एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर का हमेशा यूज करना होगा। और जो भी टेक्स्ट हम दूसरों से लेते हैं, टेक्स्ट या मीडिया कह सकते हैं हम, उसमें सभी प्रकार के आते हैं, तो वह साइटेशन विथ हो, उसका रेफरेंस या साइटेशन हमें वहाँ पर देना जरूरी होता है। कभी कभार हम क्या करते हैं, पर्पसफुली साइटेशन नहीं देते, तो इट इज़ ब्रोकन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हनन होता है। जैसे कि हम गूगल से कोई इमेज डाउनलोड करते हैं और उसका उपयोग हम पर्सनल या कमर्शियल यूज के लिए करते हैं, लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम साइटेशन देना भूल जाते हैं और फिर हम पर वहाँ पर क्लेम पड़ता है। तो ऐसा ना हो और हमारे ऊपर क्लेम ना आए, तो हमें हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा, चाहे वो फ्री हो या पेड हो। तो हमें कॉपीराइट हो या विदाउट कॉपीराइट हो, तो हमें क्या हैबिट डालनी है, उनका साइटेशन देना, उनका नाम नीचे डालना है। ओके, दिस आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम हियर, दिस पिक्चर इज डिजाइन बाय द someone else, okay, this picture is taken from the गूगल पिक वगैरह, ऐसा नाम डाल के हम उसको क्लेम जो हमारे ऊपर आने वाला है वह अवॉइड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें फ्री भी है, लेकिन फ्री लेते समय हमें यह देखना होगा कि हम नाम साइटेशन दे रहे या नहीं दे रहे। तो इस तरीके से आईपीआर किस तरह से हमें मदद करता है टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और प्लेगरिज्म और एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर के बारे में हम किस तरह से अवेयर होना चाहिए, ये भी हमें यहाँ सिखाता है। तो बोथ आर इंटर रिलेटेड कंसेप्ट। प्लेगरिज्म रेफर टू इंटेलेक्चुअल थेफ्ट। तो इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक दूसरे से कैसे संबंध होता है, ये हम यहाँ पर चर्चा करके देख सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का संरक्षण करता है। और प्लेगरिज्म, इंटेलेक्चुअल थेफ्ट क्यों होती है, कैसे होती है और क्यों ना होनी चाहिए, इस पर चर्चा करता है। Plagiarism refer to intellectual theft, means using someone else's thought in your work without referring them. जब हम किसी का कंटेंट और मीडिया, whether it is video, audio, pic, statement or any other information taken and used personally as well as commercially without any
permission of native author or without giving the reference or citation, then these activities categorized as a intellectual theft. तो इस तरह की जो कृति होती है वह इंटेलेक्चुअल थेफ्ट उसे हम कहते हैं। और इंटेलेक्चुअल थेफ्ट करना इट इज अ क्राइम अकॉर्डिंग टू द लॉ। क्राइम के अकॉर्डिंग लॉ होता है और लॉ के अकॉर्डिंग क्राइम होता है और इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में बहुत सारा नाम कमा लेते हो, आपके पास बहुत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, स्किल है और आपका एक नाम बन जाता है, नेम और फेम दोनों आपके पास होता है और उसके बेस पे आप बहुत सारा पैसा भी कमा लेते हैं। लेकिन ये सब करने में आपको बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारे साल लगते हैं, एक दिन में नहीं होता नेम और फेम, और उसके बेस पे जो पैसा हम कमाते हैं ये एक दिन में नहीं होता, पूरी लाइफ हमें वहाँ पर खर्च करनी पड़ती है, तब जाके हमारा नाम नेम और फेम होता है और उसके बेस पे हम पैसे कमाते हैं। लेकिन एक गलत एक्टिविटीज आपका नेम और फेम दोनों को भी खत्म कर सकती है। एक एक्टिविटी केवल आप पर एक दाग लग सकता है, एक धब्बा लग सकता है। लोग अच्छी चीज़ों से बुरी चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रखते हैं और अच्छी चीज़ों से बुरी चीज़ें ज़्यादा स्पीडली स्प्रेड होती है। जैसे कि एक ऑथर ने बहुत सारा नाम कमाया है अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बेस पर, राइटिंग के बेस पर, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, उसके बेस पर नेम और फेम और पैसा भी कमाया है। लेकिन जाने अनजाने में उनसे एक गलती हो जाती है, एक दूसरों का कंटेंट वह लेते हैं लेकिन उसका रेफरेंस देना, परमिशन लेना या नाम डालना, साइटेशन देना भूल जाते हैं और उनके ध्यान में ये नहीं आता, जाने अनजाने में उनसे एक मिस्टेक हो जाती है, यह मिस्टेक हो जाती है। और जब नेटिव ऑथर के ध्यान में ये आता है तो वे क्या करते हैं, फिर क्लेम करते हैं उन पर, और क्लेम करते ही ये जो मैटर है हाईलाइट हो जाता है, सब लोगों को ये पता चल जाता है। जैसे कि आज सब सोशल मीडिया का युग है, न्यूज़पेपर का, मीडिया का युग है, तो एक कोने से दूसरे कोने में जल्द ही न्यूज़ स्प्रेड हो जाती है और फिर न्यूज़ में ये सब आ गया, आने से, सोशल मीडिया पर आने से जो नाम, नेम और फेम उन्होंने कमाया था वो बर्बाद हो जाता है एक ही एक्टिविटी की वजह से। तो इसलिए एक गलत एक्टिविटी हमारा करियर बर्बाद कर सकती है, लोग हमारे बारे में नेगेटिव थिंकिंग कर सकते हैं। जो हमने पूरा मेहनत और लगन से नेम और फेम कमाया था, लेकिन एक सिंगल एक्टिविटी ने, एक सिंगल मिस्टेक ने पूरे मेहनत को पानी में मिला दिया, ओके, धूल में मिला दिया। तो इस तरह से हमें प्लेगरिज्म एक्टिविटी को अच्छी तरह से समझना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए उसके बारे में। यदि कोई मिस्टेक उसके संबंध में होती है तो हमें तुरंत उसको दुरुस्त करना चाहिए। सो हियर वी विल टेक शॉर्ट ब्रेक एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अगेन। थैंक यू। These activities because it is illegal activities according to the intellectual property right, and if we don't prevent these activities then we will be punished, we will be given the punishment under this intellectual property right. So it's taking the credit for someone else's work which goes against the rules of academia.
and quoting is not banned, quite the opposite. In fact, however, the author must be named. So how it is most important to give the name of original author under the activities if we are take the reference of someone else work. यदि हम किसी के वर्क या क्रिएटिविटी का रेफरेंस लेते हैं तो वहाँ पर साइटेशन देना कितना इम्पोर्टेंट होता है यह हमें इसके द्वारा पता चलता है. अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड इंटेलेक्चुअल थेफ्ट. आप जाने अनजाने में यह भूल कर सकते हैं, तो आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए वाइल यू आर यूजिंग द इंटरनेट और एनी अदर प्लेटफॉर्म. Plagiarism can take on numbers of different forms. It does not just consist of copying but can also be uncredited translation or the use of someone else's ideas without referencing authors. So it is a wide concept. It is not considered only you copied someone else's work purposefully or without purposefully, but if you are translate without the given name of original writer, or if you are take someone else work or ideas without the permission of original author, then these activities can categorize as a intellectual theft. तो ये सभी प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है ये इंटेलेक्चुअल थेफ्ट में कैटेगराइज हो सकती है. सो इफ you want to avoid these all kinds of the activity, so it is need to give the credit to the original creator. Okay, whether it is author, whether it is designer, whether it is creator, something else. So plagiarism can identically be uncovered. There is a special software for this. Plagiarism is detected. There are serious consequences such as receiving a failing grade for your work, being kicked out of your programs, or being denied your academic titles. Aside from plagiarism, copyright infringement, fraud are punishable criminal offenses. So how we can aware about these activities, and it can be take serious consequences in our field, in our life. तो ये छोटी सी गलती हमारे जीवन में गंभीर परिणाम ला सकती है. ये इसका उदाहरण है यहाँ पर दिया. तो इसमें क्या हो सकता है, you should be fired from your job, you should be fired from your degree. Okay, you should be banned on your degree, you should be banned to take the admission. So different kinds of the action is taken by the statutory body if you are break these rules. यदि आप इस रूल का उल्लंघन करते हैं तो आप पर ये सभी प्रकार की एक्शन ली जा सकती है. तो यू शुड अवेयर अबाउट दैट. तो हमें हमेशा इसके बारे में जागृति निर्माण करनी है हमारे बारे में, कि हम इसका गलत उपयोग ना कर सके किसी के कंटेंट का. तर so you should familiarize with your convention of quotation. You to know what the gray areas are and avoid plagiarism in all its forms. Okay, so let's learn about
plagiarism, what is meaning by the plagiarism and plagiarism terms, and how we should aware about that. So plagiarism is derived from the Latin words plagiarius, meaning kidnapper. Plagiarism means stealing or copying another work, someone works, or representing its as own work. So what is the meaning of this concept? Actually, kidnapper. If someone kidnap from other persons and they demand money instead of they demand something else instead of, that is called the kidnapper. Okay, किडनैपर हम किसे कहते हैं? किसी का अपहरण करना और उसके बदले में कुछ डिमांड करना, और जो व्यक्ति या संस्था ये सब करती है तो उसको किडनैपर कहा जाता है. ओके, तो ठीक उसी तरह से प्लेगरियस मीन्स स्टीलिंग और कॉपीइंग अनदर वर्क्स एंड प्रेजेंट एज ओन वर्क. हम किसी का जो कंटेंट होता है, किसी की जो क्रिएटिविटी हम चुरा लेते हैं और कॉपी करते हैं और उसको ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि दिस इज़ माइन, ये हमारी है करके, ऐसा विदाउट परमिशन ऑफ ऑथर, विदाउट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑथर्स कंटेंट. तो ये एक्टिविटीज़ इंटेलेक्चुअल थेफ्ट यानी कि प्लेगरिज्म कही जाती है, और इसके अगेंस्ट हमारे ऊपर क्लेम हो सकता है और हम एक गंभीर स्वरूप का गुनाह कर सकते हैं. तो ये हमसे ना हो, इसके लिए हमें अवेयरनेस ओनली इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. वी कैन शेयर, अपलोड, डाउनलोड, व्यू, सर्च एनी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एवरीथिंग इज देयर फ्री इफ वी आर यूजिंग इंटरनेट. आजकल इंटरनेट का ज़माना है और बहुत सारे लोग इंटरनेट पे रहते हैं और इंटरनेट का यूज करते हैं. तो उस पर मल्टीमीडिया जो होता है, यानी कि वीडियो बोलते हैं, कंटेंट बोलते हैं, टेक्स्ट बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, सभी प्रकार का उसमें आता है, ऑडियो बोलते हैं. तो एक फैड हो चुका है, जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम इंटरनेट पे जाते हैं और फिर उसे डाउनलोड करते, कॉपी करते, पेस्ट करते हैं, और विदाउट एनी टेंशन वी कैन डू ऑल दिस एक्टिविटीज़ विथ कॉन्फिडेंटली. ये सभी चीज़ें हम कॉन्फिडेंटली करते हैं बिना कोई दिक्कत. लेकिन ये चीज़ें एक सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ये हमें पता ही नहीं होता. यदि किसी ने क्लेम किया तो हमें एक इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए. जैसे इंफॉर्मेशन लिटरेसी होती है वैसे इंटरनेट लिटरेसी भी होती है. इंटरनेट का हम सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं टू अवॉइड कॉपीराइट, टू अवॉइड द इंटेलेक्चुअल थेफ्ट. The availability of anything and everything on the internet has made our life easier, but people make misuse of this advantage of the internet by representing others' work as their own for fame, for academic benefits, for money, and for personal interest. So if we are take example of academic field, so what kind of the intellectual theft is going on in our field, we know very well, and why it is taken place. ये क्यों होती है और किस वजह से होती है ये हमें पता है, और कोई जो करता है उसे क्यों करता है ये सभी चीज़ें हमको पता होती है. क्योंकि नेम और फेम कमाने के लिए कोई करता है, पैसे कमाने के लिए कोई करता है, अपना प्रमोशन बढ़ाने के लिए कोई करता है. ओके, कोई पर्पसफुली करता है, कोई विदाउट पर्पस करता है, गलती कर बैठता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि ये इतनी सीवियर गलती हो सकती है. ओके, तो सभी चीज़ें हमारे फील्ड में होती है और हमको ये सब पता है. जब हमको ये पता होती है तो हम दूसरों को बता सकते हैं. यदि हमको ही पता नहीं तो हम दूसरों को कैसे बता सकते हैं. तो इट इज़ नीड फर्स्ट एज अ बीइंग प्रोफेशनल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वी शुड नो अबाउट द प्लेगरिज्म. ओके, and its consequences which are come in our life. So plagiarism is most commonly practices in academic and researches. तो ये
एकेडमिक और रिसर्च के फील्ड में ऐसी कॉमन प्रैक्टिसेस होती है, ज़्यादातर एकेडमिक फील्ड में होती है, डिग्री प्राप्त करने के लिए, प्रमोशन बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए. On the internet we have all kinds of literacy articles, educational content, research papers, etc. लेकिन इंटरनेट का यूज करते समय इंटरनेट लिटरेसी सबको होनी चाहिए, और यदि हमारी खुद की प्रॉपर्टी है तो हम उसका प्रोटेक्शन करते ही खुद एज अ ओनर करके, फिर चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो या कंट्री की हो. तो ये तीनों लेवल पे एक ओनर होता है, और हमारी प्रॉपर्टी का किस तरह से हमें संरक्षण करना चाहिए, ये तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. लेकिन इंटेलेक्चुअल थेफ्ट के जो प्रकार है प्लेगरिज्म के, वो इंटरनेट पे ही क्यों होते हैं, ये सवाल आपके मन में आ सकता है. दिस इज हैपन ओनली इन केस ऑफ इंटरनेट, एंड व्हाई इट इज पॉसिबल दिस. ये क्यों पॉसिबल होता है वहाँ पर, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर किसी का एडमिनिस्टर नहीं है, कोई एडमिनिस्टर नहीं है जिसका, और जिसका एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी व्यक्ति, संस्था या देश नहीं देखती है. इंटरनेट इज नथिंग बट द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, नेटवर्क के नेटवर्क से ज्वाइन हुआ है, तैयार हुआ है. तो इसलिए इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है. इंटरनेट पे एनी टाइम वी कैन एक्सेस, एनीवेयर वी कैन एक्सेस. सो देयर इज नो लिमिटेशन ऑन दिस internet, on this platform. So anybody can access from anywhere can access from anywhere, multi-access simultaneously anywhere. So in this way there is no control of someone else like a व्यक्ति, institutions और country. तो इसीलिए फ्रीडम है सबको, कोई कुछ भी कर सकता है इंटरनेट पे, और किसी भी कंटेंट को सर्च कर सकता है, कॉपी कर सकता है, पेस्ट कर सकता है. किसी ने गलत किया तो उस पर वॉच रखने वाला कोई नहीं है, और उसको बताने वाला भी कोई नहीं है कि आप गलत कर रहे हो. ओके, तो ये चीज़ें जाने अनजाने में होती रहती है, और इंटरनेट का यूज करते समय सबसे ज़्यादा होती है. ऑनलाइन जब हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं इंटरनेट, तब ज़्यादा होती है. ओके, तो इस तरीके से प्लेगरिज्म कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल. दो प्रकार का प्लेगरिज्म होता है, जैसे कि पर्पसफुली, विथ इंटेंशनली और विदाउट इंटेंशनली. यदि मुझे पता है कि मैं किसी का टेक्स्ट कंटेंट या वीडियो मल्टीमीडिया कॉपी कर रहा हूँ, तो मैं पर्पसफुली ये करूँगा, और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है ये मुझे पता है. लेकिन मुझे अभी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है इंडिविजुअल लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, कमर्शियली, पर्सनली, तो मैं उसका यूज करूँगा, मैं कॉन्सिक्वेंस का विचार नहीं करता. फिर तो ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं सोसाइटी में जो इंटेंशनली प्लेगरिज्म करते हैं, जैसे कि हैकर होते हैं, हैकर इंटरनेट. कुछ हैकर में भी दो कंसेप्ट है, एक अच्छे काम के लिए और एक बुरे काम के लिए. हैकिंग करते हैं लोग, दूसरे का नुकसान हो, ये पर्पज़ जब होता है तब उसे उस हैकर को बुरा हैकर कहा जाता है, और अच्छा पर्पज़ होता है तो उस हैकिंग के लिए अच्छा हैकर कहा जाता है. तो दोनों प्रकार के हैकर्स ऑनलाइन फील्ड में होते हैं. ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्लेगरिज्म इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हो सकता है. अनइंटेंशनली मतलब हमें प्लेगरिज्म मतलब क्या होता है, वो कैसे होता है, क्यों होता है और कौन करता है,
इसके बारे में कुछ पता नहीं होता और जाने अनजाने में हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं। लेकिन आप इंटेंशनली करते हो या अनइंटेंशनली करते हो, आप यदि प्लेगरिज्म करते हो तो एक प्रकार से क्राइम होता है। इट इज अगेंस्ट लीगल एक्टिविटी। ओके, तो ये लीगल नहीं होता, इलीगल होता है, चाहे आप इंटेंशनली करो या अनइंटेंशनली करो। ओके, लेकिन इन पर एक ही सॉल्यूशन आपको यहाँ पर हम बता सकते हैं कि आप अवेयर रहो, क्योंकि दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन and it is very difficult to identify the activities which is original or not original, whether it is copyright or free from copyright। तो ये पहचानना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हमने कल क्या खाया ये भी हमें याद नहीं रहता, थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा ये भी आज हमें अभी याद नहीं रहता। तो इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन की मात्रा होती है इंटरनेट पे, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ कॉपीराइट और फ्री फ्रॉम कॉपीराइट। कौन सा कंटेंट कॉपीराइट है और कौन सा कंटेंट विदाउट कॉपीराइट है, ये पहचानना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसके लिए हमें प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर का यूज करना है यदि हम महत्वपूर्ण एक्टिविटीज करते ही काम करते ही रिसर्च और एकेडमिक फील्ड में। तो ओके, following are key points to understand what can called as plagiarism। प्लेगरिज्म को क्या कहते हैं ये तो शॉर्ट में हम जानते हैं। इफ वी यूज अनदर पर्सन वर्क अंडर अवर नेम, दूसरे का काम हमारे नाम से प्रकाशित करना। वी कॉपी अदर्स आइडियाज वर्ड्स, डोंट गिव देम क्रेडिट, दूसरे के आइडिया कंटेंट मल्टीमीडिया जो भी हम कॉपी करते हैं और क्रेडिट देते हैं, ये एक्टिविटीज प्लेगरिज्म में आती है। इफ वी डाउनलोड कॉपीराइट इमेज म्यूजिक प्रेजेंट देम एज आवर ओन, मल्टीमीडिया चाहे फिर ऑडियो वीडियो इमेज टेक्स्ट कोई भी हो, हम डाउनलोड करते हैं और विदाउट गिविंग द क्रेडिट ऑफ समवन एल्स द ओरिजिनल ऑथर, दिस एक्टिविटी इज कैटेगराइज्ड अंडर कॉपीराइट or plagiarism। If we copy maximum words and modify them so that we can cleverly use them under our own name, ओरिजिनल टेक्स्ट है हम उसमें कुछ घुमा फिरा कर थोड़ा चेंज कर उस टेक्स्ट को हमारे नाम से प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं, इसे इंटेंशनली कहा जा सकता है। और हमें ऐसा लगता है कि इसे कोई पहचानेगा नहीं, ये किसी की समझ में नहीं आएगा, तो ये एक्टिविटीज भी प्लेगरिज्म होती है। इफ वी यूज समवन एल्स कॉपीराइट म्यूजिक वीडियो फॉर आवर ओन म्यूजिक कवर वीडियो और दूसरा ऑडियो वीडियो जब भी हम यूज करते हैं और अपने नाम से पब्लिश कर देते हैं, तो ये एक्टिविटीज भी प्लेगरिज्म में आती है। If we recreate an image, video, music, article, etc. in such a manner that is quite similar to the original ones, हम क्या करते, हमारे अंदर स्किल कम है और हम कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं और जो पेड वगैरह है वो बहुत महंगा होता है, तो हम कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं, तो ओरिजिनल वीडियो म्यूजिक आर्टिकल उसमें कुछ चेंजेस करके सिमिलर बनाने का प्रयास करते हैं और किसी की वो ओरिजिनल एक्टिविटीज होती है, तो ये एक्टिविटीज भी एक प्लेगरिज्म एक्टिविटीज होती है और जिसके जरिए हमें पनिशमेंट हो सकती है। सो इन दिस वे वी डिस्कस ऑन द प्लेगरिज्म एंड हाउ वी कैन अवॉइड द प्लेगरिज्म। It is most important, awareness is the most important thing there। तो अवेयरनेस ये सबसे बड़ी चीज़ होती है और यदि हम अवेयर रहे तो हम प्लेगरिज्म से बच सकते हैं, इंटेलेक्चुअल थिंग से बच सकते हैं। सो हियर वी विल स्टॉप हियर, रिमेनिंग पार्ट वी विल टेक